So after early period, we had started manufacturing things. Clear? People had started manufacturing products by manually. Okay? By using their labor, their mind, their hands. Okay? And they had started handicraft products. Clear? And people also had started craft works. Clear? Many types of things that are needed for everyday use, right? They had to be made by us. Clear? People started making utensils of earth and soil, earthen material. ठीक है? After that they used metals also. Clear? But due to challenging growth of population, clear, due to challenging growth of population, this things, they became shorter, means they could not supply the demand. Understand? Because population was growing in large amount. Understand? That's why the products made by hand, they could not meet their demands. Okay? People have to wait for these products. This manufacturing was very slow because it was made manually using animal muscles. Clear? But when industrial revolution took place, clear, after industrial revolution we had developed mass production. Okay? That is, the main feature is mass production. Clear? Mass production became the special feature, okay, of manufacturing industry. Clear? People started producing large number of things, large number of commodities, large number of goods, okay, using machine and human aid. Clear? People also use relevant technology for growth of these things. Understand? So we have got we had processed raw material to produce products. ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, प्रोसेसिंग raw materials ठीक है, to give valuable products right, using relevant technology. ठीक है? This was your manufacturing. ठीक है? And the site of manufacturing became industry. ठीक है? Means we had to manufacture things in industry. ठीक है? तो यही हमारा valuable products. ठीक है? ये जैसे हमारा पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, है कि नहीं? पेपर क्या है? पेपर किसका पेपर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वुड. तो वी हैव टू डू प्रोसेसिंग ऑफ वुड, देयर वी विल गेट पेपर, है कि नहीं? शुगर है, तो वी हैव टू प्रोसेस शुगर केन, है ना? प्रोसेसिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, कटिंग, क्रशिंग, ठीक है, एंड मेकिंग दैट थिंग. ऑल प्रोसेसेस कम्स इन प्रोसेसिंग. क्लियर? Here we will not go in detail because it's not chemistry subject, है कि नहीं? एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट की जरूरत होती है, आयरन एंड स्टील के लिए क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट. ठीक है? They are raw materials. Understood? That's why they are used here and we process them. Understood? तो इसी तरह से टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न, है कि नहीं? क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न. इट में भी कॉटन यार्न, ठीक है, और यू कैन से फैब्रिक यार्न और सिल्क यार्न. मेनी टाइप्स ऑफ yarn are there. Understand? So we have to process on this yarn. Understand? And finally we will get this thing, that is your final product. Understood? तो इसमें क्या है? People employed in the secondary activities, ठीक है, manufacture primary material into finished goods. ठीक है? तो इसमें क्या है? People employed
इन सेकेंडरी, ठीक है, सेक्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोसेस प्राइमरी मटेरियल इनटू finished goods, understand, that is into finished goods, right, they have to give us finished goods. For example, we have got many types of cottage industries, ठीक है, people are using, but it is in small scale because here we are using manual work, है ना, and simple machine is used, but using complex technology we are doing mass production. एक ही छत के नीचे, ठीक है, we are making yarn, then we are making fabric, and then we are also coloring, dyeing it, उसको डाई करना, ठीक है, उसमें जो है फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करना, ठीक है, कई टेक्नोलॉजी मिक्स हो गई, isn't it? In this way manufacturing industries work. The workers employed in steel factories, car, ये सब क्या है, fell into category, ठीक है, ये पार्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। और बहुत सारे पीपल क्या हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वर्कर्स दे प्रोवाइड सर्विसेज, है ना, वर्कर्स प्रोवाइड सर्विसेज, राइट, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स साथी, राइट। और इस तरीके से क्या है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना डेवलप्ड है उसी पे डिपेंड करता है इकोनॉमी, ठीक है। आपकी कंट्री की इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है ये डिपेंड करेगा आपके पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। एज मच एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यू हैव, दैट मच योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, understand, that is directly proportional, right. Now we will discuss importance of manufacturing. Importance of manufacturing, इसके बहुत सारे importance हैं, clear, that is your importance of manufacturing, clear। तो इसमें क्या है कि ये आपका जो है ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, ठीक है, एंड इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। क्या करता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ठीक है, दिस मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। पहले हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैसे करते थे, we had used animal muscles, we had used wooden plow, isn't it, and right now we are using tractors, rotavator, harvester, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर कैसे हुआ, मॉडर्नाइज हो गया। हाउ इट वाज मॉडर्नाइज, बिकॉज वी हैव गॉट ऑल दीज मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड, दीज मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। जब ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई तब हमें जो है जा करके हमारा एग्रीकल्चर अब मॉडर्नाइज हो गया। अब आराम से ट्रैक्टर में बैठ करके पूरे खेत की प्लॉइंग कर देते हैं, है कि नहीं। अब ज़्यादा आपका फिजिकल जो है हरासमेंट नहीं होता। पहले क्या था, फिजिकल हरासमेंट होता था, है कि नहीं। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पसीना बहाना पड़ता था। अब जो है केवल आपको उसका खाली हैंडल संभालना है बस, है कि नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो ये क्या है, क्योंकि आपका यही हमारी बैकबोन भी है, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, है कि नहीं। तो हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी, ठीक है। और क्या होता है, इट प्रोवाइड्स जॉब्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमें जॉब प्रोवाइड करती है कि नहीं। पहले जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी तो देयर वाज नो जॉब, पीपल वर कंपेल्ड टू डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ओनली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, दैट इज। उसके बाद हमारे पास है ये जो है एक प्री कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने का, ठीक है, राइट। इट रिड्यूस्ड
It reduces poverty and unemployment. है कि नहीं? इट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन, मतलब उसको जड़ से खत्म कर सकती है अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ डेवलप कर जाए, isn't it? Then it can reduce all these things. Clear? And along with this, the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India, यही इसकी मेन फिलॉसफी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज को ख़त्म करती हैं, ठीक है। इट ब्रिंग डाउन रीजनल डाइवर्सिटी, इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, क्लियर। तो रीजनल डाइवर्सिटी आपकी ख़त्म होती है, ठीक है। मतलब जो हम लोग कहते हैं कि हम इस एरिया के, हम उस एरिया के, हम उस एरिया के, जब सब जगह मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर देयर, देन पीपल विल नॉट से लाइक दिस, ऑल पीपल्स फ्रॉम बिहार दे विल एम्प्लॉयड इन बिहार, है कि नहीं। पीपल्स ऑफ पंजाब दे विल एम्प्लॉयड इन पंजाब, दे आर नॉट टू कम इन मुंबई एंड कोलकाता। लोग भाग भाग के जाते हैं ना दूसरी जगह पे, तो कम से कम जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो जाएगी तो उनको अपने एरिया में ही काम मिलेगा, तब ये जो रीजनल डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगी, है कि नहीं। या क्या कहते हैं, दूसरे एरिया के लोग दूसरे एरिया में अपना टेक्निकल नो हाउ के साथ जो है एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, और इंडिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये भी है। तो इसमें क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इज मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इट ब्रिंग्स, हाँ, ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, what will happen, foreign exchange will come, है ना, foreign exchange will come और it will strengthen country's economy will come, clear। Then what will happen, our national economy will be stronger because of high foreign exchange, ठीक है। if we have foreign exchange in large amount, then our countries economical condition will be stronger, ठीक है। and countries that transfer their raw materials into wide variety in finished goods of higher value are prosperous, ठीक है। इससे क्या होगा, हाँ, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज, ठीक है, having large manufacturing industries will increase, है ना, increase हो जाएगी प्रॉस्पेरिटी, क्लियर, their prosperity will increase। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट स्ट्रेंथन नेशनल इकोनॉमी, है कि नहीं। ये हमारी नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है, मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को, है ना, प्लस इट प्रोवाइड्स जॉब्स, खूब नौकरी देती है ना, फिर इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी कम करती है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डाइवर्सिटी, जो क्षेत्रवाद है, मतलब रीजनल डाइवर्सिटी है, कई तरह के हमारे रीजन्स बन गए हैं। जब ढेर सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, ठीक है, तब क्या होगा, तो ये रीजनल डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे के यहाँ वर्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये डिस्पैरिटी मतलब विविधता, है ना। एंड देन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉरेन एक्सचेंज विल कम टू आवर कंट्री,
भाई हम लोग बाहर भेजेंगे, जब ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली सरप्लस प्रोडक्ट्स वी विल सेंड आउटसाइड, है ना। एक्सपोर्ट मतलब ये एक्सपोर्ट करेंगे और इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना। और इसके साथ साथ क्या है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज हैविंग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज, ठीक है। जो भी कंट्रीज जहाँ पे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो प्रॉस्परस होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इजंट इट। हर घर से लोग एम्प्लॉयमेंट पाएंगे तो डेफिनेटली इनकम बढ़ेगा, है ना। तो ये था, तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे में पूरे नहीं हैं, ठीक है, बट दे गोज हैंड इन हैंड, राइट। हाउ दे गोज इन हैंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था, गोज हैंड इन हैंड, ठीक, ये गोज हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो है इंडस्ट्री भी डिपेंड करेगा एंड इंडस्ट्री ऑल्सो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हाउ, बिकॉज फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, you know, the people working in manufacturing industries, they will get their food, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चरल यूनिट से, ठीक है। अगर वो एग्रीकल्चरल यूनिट्स में आपका प्रोडक्शन नहीं होगा तो सब भूखे रह जाएंगे, है ना। और सेकेंडली एग्रीकल्चरल फार्मर्स, ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइड देम टूल्स, मशीन, ठीक है, इक्विपमेंट्स, अंडरस्टैंड। उनसे मिलेगा तभी तो फटाफट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे, फर्टिलाइज़र मिलेगा, इंसेक्टिसाइड मिलेगा, पेस्टिसाइड मिलेगा, ये सब फैक्ट्री में ही तो बनता है, खेत में थोड़ी उगेगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से हैंड इन हैंड चलते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। मीन्स दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम? वो लड़का जो, हाँ बेटा तुम खड़े हो, ब्लू स्वेटर, हाँ स्काई ब्लू, पीछे पीछे। तो कैसे आपका जो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दे गोज इन हैंड, हाउ इट गोज हैंड इन हैंड, कैसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Right now I have explained that agricultural products they becomes raw material for industries, है कि नहीं। Second thing, they produce food grain that becomes food for employers, for workers, ठीक है, employees जितने हैं उनके लिए food प्रोड्यूस करते हैं, understand। और फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर कॉटन मिल है उसके लिए कॉटन ग्रो करते हैं, इंडिगो ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर केन ग्रो करते हैं ना, तो वो उसके बिना उनका फैक्ट्री चल पाएगा, यही चीज़ बताना है। और फिर जो हमारे फार्मर्स हैं दे आर यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स, उनको पंपिंग सेट चाहिए इरिगेशन के लिए, ठीक, उनको जो है ट्रैक्टर चाहिए, रोटावेटर, हार्वेस्टर चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ उनको जो है बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। दोनों काम एक दूसरे की मदद के बिना नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। समझ में आया? अब बताओ इसी को हिंदी में ही बताओ, डोंट वरी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस क्रॉप, दे प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड सप्लाई देम, है ना। फूड ग्रेन्स आर सप्लाइड टू वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल इज सप्लाइड टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट गुड्स, है कि नहीं। एंड सेकेंडली ऑन द अदर हैंड manufacturing industries they are providing
मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स दे आर प्रोवाइडिंग, है ना, खेती वाले सामान, कैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, प्लस पंपिंग सेट आप प्रोवाइड करते हैं, वही पंपिंग सेट भी तो फैक्ट्री में बनेगी, है कि नहीं, फर्टिलाइजर्स, खाद, उसकी भी तो फैक्ट्री होती है ना, फिर उसके बाद और किसकी फैक्ट्री होती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक, तो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू फार्मर्स, है कि नहीं, तो एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे गोज हैंड इन हैंड। ऐसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, समझ में आ रहा है, इसी को आपको अपने छोटे छोटे सेंटेंस में बना के लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा पहले हिंदी में सोच करके उसको ट्रांसलेट कर लो, पॉइंट्स लेकिन दिमाग में आना चाहिए, है ना, तभी आप लोग लिख पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ वी विल, आपको पता है कि जैसे प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, ठीक है, मशीन टूल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब चीज़ की जरूरत पड़ती है ना। सो इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज हैपनिंग, ठीक है, मीन्स एवरी प्रोडक्ट हैज बीन ग्लोबलाइज्ड, वी आर डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन बिकम्स वेरी सिंपल, ठीक है, व्हेन वी एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स इट इज ग्लोबलाइज्ड टू डिफरेंट कंट्री, ग्लोबलाइजेशन ये तो है, व्हेन आवर प्रोडक्ट्स क्रॉस द बाउंड्री, है कि नहीं, ऑफ आवर कंट्री एंड रीचेज इन अनदर कंट्री, देन इट इज ग्लोबलाइज्ड, है कि नहीं, when other countries product cross the boundary of that country and reaches to our country, when we have imported, अब राफेल प्लेन था, ठीक है, वो फ्रांस में बना, ठीक, हमने कहा उसको खरीदा तब इंडिया में आया, तो प्लेन ग्लोबलाइज हुआ, है कि नहीं, टाटा मोटर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके शोरूम्स पे हमने भेज दिया डिफरेंट कंट्रीज में, वो भी ग्लोबलाइज हो गया, है कि नहीं, अमेरिका में पोटैटो होता था, इट रीचेज इंडिया, है ना, बहुत सारे कोविड-19 कोरोना वायरस ग्लोबलाइज हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया, है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन है, एंड ग्लोबलाइजेशन में हमें कंपटीशन में रहना पड़ेगा, है कि नहीं, तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसी होनी चाहिए, दे शुड बी एफिशिएंट, ठीक है, दे शुड हैव फास्ट स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, पर मिनट प्रोडक्शन जो है या पर सेकेंड प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर, तब हम जो है कंपटीशन कर पाएंगे, नहीं तो चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आके छा जाएंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे, है कि नहीं, दे वुड बी चीपर एंड बेटर, पीपल विल परचेज बिकॉज दे आर चीपर, एंड इंडियन प्रोडक्ट्स दे आर स्टिल लेफ्ट इन मार्केट, nobody purchased, and Indian industrialists they became helpless, they could not earn, and Chinese people they became wealthier and wealthier because their selling increased, है कि नहीं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी मॉडर्न एंड एफिशिएंट, ठीक है, दैट थिंग कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ, हम आत्मनिर्भर है इसी से ही नहीं हो जाता है कि हम एक ग्रेट इकोनॉमी बन गए, हमारी कंट्री इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, हमारा देश जो है सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, इसका मतलब नहीं है कि वी आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, है कि नहीं, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिगार्डेड हियर एंड वी कैन से दैट योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, हमारी जो है नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ना, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हाउ दे आर, यू नो व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका योगदान क्या है कि नहीं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एवरी सेक्टर,
isn't it? So how it is contributing? It is contributing over last 2 decades. The share of manufacturing sector has stagnated at 17% out of total 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. ठीक है, तो हमारा टोटल जो है टोटल जीडीपी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स, ठीक है, 18% ऑफ टोटल जीडीपी, ठीक, टोटल जीडीपी का 18% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और नहीं 17%, ठीक है, और जबकि हमारे और भी सेक्टर्स हैं, दे आर इंक्लूडिंग इन जीडीपी, दैट इज टोटल 27% में, ठीक है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही, सेकेंडरी सेक्टर, नॉट प्राइमरी एंड टर्सरी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टोटल 27%, ठीक है, और 27% का 17% हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतना अपना योगदान दे रही है, इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और इसमें से 10% माइनिंग, क्वायरिंग एंड 10% माइनिंग, क्वायरिंग और क्या है, हाँ, एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, राइट। ये टोटल जीडीपी का 10% इसका हिस्सा है, इसका कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, ठीक है। सो दिस इज द कंपैरिजन इन सब ईस्ट एशियन कंट्रीज वेयर इट इज 25 to 35%, ठीक है। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर मोर एफिशिएंट, वो 25 से 35% तक बढ़ गई है। और हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज कैसी हैं, अभी बुलक कार्ट की स्पीड से चलती, बैलगाड़ी की स्पीड से, ठीक है, बिकॉज पहले तो हमारे वर्कर्स ट्रेंड नहीं उतने, ठीक है, एंड वी आर हैविंग ओनली ओल्ड मशीन्स, अभी हमने उसको चेंज नहीं किया है, राइट। इस वजह से उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो चुकी है। अब इट टेक्स लॉट ऑफ बजट टू चेंज दीज मशीन्स। अब नई नई मशीन्स तो आ रही हैं, जब नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, लेकिन उतना ह्यूज बजट चाहिए उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। इसलिए अभी पुरानी मशीन से काम चल रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन घट ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो हमारा डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है, ठीक है, 2003 में, ठीक है, वो क्या हुआ है, काफ़ी ग्रो हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, राइट। और गवर्नमेंट जो है एफर्ट कर रही है टू इम्प्रूव इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग competitiveness council, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज NMCC, राइट। ये हमारे काउंसिल्स हैं, ठीक है। दीज NMCCs, क्लियर, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, एंड दे आर ट्राई टू अचीव our interventions, okay, okay.